Okay, we want to speak today about being filled with the Holy Spirit. और आज हम बात करना चाहते हैं पवित्र आत्मा से भरने के बारे में Pressing on toward the mark. और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के बारे में। We don't read such things in the Old Testament. और हम पुराने नियम में ये सारी बातें नहीं सीखते। We don't read about Moses or Elijah saying, I'm pressing towards the और mark. हम ये नहीं सुनते मूसा एलिया कहते हुए कि मैं उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा They were हूँ। only interested in preaching and bringing Israel back to God. और इस्राएल को प्रभु के पास वापस लाने में और प्रचार करने में उनकी रुचि थी। Paul traveled the world to make disciples. और पौलुस ने भी पूरे संसार के अंदर वो सफर कर रहा In है शिष्य बनाने addition के to लिए। his ministry, he had a personal goal. लेकिन उसके सेवकाई से और ज्यादा उसके एक व्यक्तिगत That लक्ष्य is, था। I want to become more like Jesus Christ. और वो ये चाहता था कि मैं यीशु मसीह के समान बनूं। And for that, we cannot do it without being filled with the Holy Spirit all the time. और ये हम पवित्र आत्मा के निरंतर भरे जाए बिना हम नहीं कर सकते। The doctrine of the Holy Spirit is the most confused doctrine in Christendom today. और पवित्र आत्मा को जो सिद्धांत है आज बहुत ही ज्यादा इसको नहीं गैर समझ इसमें होती है। Being born again, almost all Christians understand it. और सारे मसीह नया जन्म पाने के सिद्धांत को समझ पाते हैं। How to be born again, the Pentecostal and the Brethren and Baptist all will say the same thing. और कैसे नया जन्म पाना है, एक ब्रदर एंड बैप्टिस्ट हर एक समान कहते हैं। There's not difference between the Brethren and Pentecostal and that doctrine of being born again. और उस सिद्धांत जो ब्रदरन और पेंटिकोस्टल का है उसके अंदर कोई अंतर नहीं है In being born again. और नया जन्म पाने के बारे में। But when it comes to being filled with the Holy Spirit, लेकिन जब पवित्र आत्मा के बारे में भरने के बारे में होता है tremendous differences in और opinion. और यहाँ पे भयानक एक मत का वहाँ पे अंतर है। The Pentecostals say, once for all, you'll baptize in the Holy Spirit and you must speak in tongues. और पेंटिकोस्टल कहते हैं कि जब आपको पवित्र आत्मा से भरते आपको अन्य भाषा में बोलना ही है। And the Brethren say, when you're born again, you're already baptized in the Holy Spirit, there's nothing to seek for. और ब्रदरन कहते हैं कि जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए तब और No, when you're born again, अब जब नया जन्म पाते You're हैं तभी आप automatically- पवित्र आत्मा से भरे पहले से ही होते हैं। and the tongues and all is from the devil. और जो अन्य भाषा है वो शैतान की ओर से है। There's two extremes. ये दोनों दो छोर है। So they agreed on how to be born again. और ये कैसे वो नया जन्म पाने उनको पता है। But when it comes to being filled with the Spirit, there's so much of difference. लेकिन जब पवित्र आत्मा से भरने के बारे में है This तब बहुत सारा अंतर is है। one extreme, this is the other extreme. ये एक दूसरी ओर है, ये दूसरी छोर है। And I've discovered through the years और मैंने इतने सालों में ये ढूंढा है that when you have two extremes of teaching like this, अगर दो इस प्रकार की छोर की कोई शिक्षा है both are wrong. दोनों ही गलत है। Truth is somewhere else in the middle. और मतलब सत्य उन दोनों के बीच में है। So, when you look at the New Testament, और आप जब नए नियम को देखते हैं I want to present to you what the New Testament teaches about the Holy Spirit. मैं नए नियम जो पवित्र आत्मा के बारे में सिखाता है वो आपको दर्शाना चाहता I हूँ। want you to learn a simple principle of Bible study. और बाइबल अध्ययन का एक बहुत ही साधारण मैं आपको सिद्धांत सिखाना चाहता हूँ। I'm not an evangelist, I'm a Bible teacher. मैं एक सुसमाचार प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक वचन का शिक्षक हूँ। I don't glory in that, it's a gift God gave me. और मैं इसमें महिमा नहीं करता, लेकिन मैं ये परमेश्वर ने मुझे वरदान It's दिया है। not something I produced, God gifted me as a teacher. और ये मैं अपने आप से उत्पन्न नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया I सिखाने का। tried to be an evangelist in my younger days, I failed. और जवानी के दिनों में एक सुसमाचार प्रचार बनने का कोशिश किया, लेकिन मैं असफल रहा। I still preach it, but I've not been able to bring people to Christ like a person with a gift of evangelism. और अभी भी मैं प्रचार करता हूँ, लेकिन उस वरदान के द्वारा जो सुसमाचार का उसके द्वारा उनको प्रभु में नहीं ला पाता। God has given different gifts to different people. और अलग अलग लोगों को परमेश्वर अलग अलग वरदान देता है। See, for example, it says in Ephesians 4, इफिसी 4 अध्याय में हम देखते हैं 5 different gifts God gives to people. और 5 अलग अलग वरदान जो परमेश्वर लोगों को That देता है, Christ has given to the church. जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिए हैं। Ephesians 4:11, इफिसियों 4:11 apostles, प्रेरित, prophets, नबी evangelists, और सुसमाचार प्रचारक pastors or shepherds, and teachers. और चरवाहे और शिक्षा देने वाले। So these are, it says, gifts that Christ has given to the church. और ये सारे एक वरदान है जो मसीह ने कलीसिया को दिए हैं। It's not somebody weak, man cannot appoint this. और मनुष्य से नियुक्त नहीं कर सकता। You can't call a man and say, okay, I appoint you as an apostle. और कोई मनुष्य आपको ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें प्रेरित करके नियुक्त करता हूँ। नहीं, No, impossible. यह असंभव है, Foolish. ये मूर्ख बात है। Only Christ can make a person an apostle.
केवल मसीह ही एक व्यक्ति को प्रेरित बना सकता Apostle है। is one who plants churches and becomes like a father to them and appoints elders. और प्रेरित वो है जो कलीसिया की स्थापना करता है, उसके ऊपर पिता और उसके ऊपर प्राचीन की नियुक्त You करता try है। all your life, you cannot be an apostle if Christ does not appoint you. अगर यीशु आपको नियुक्त नहीं करता, अपने जीवन भर आप प्रयत्न करें पर नहीं कर No पाएंगे। man can lay his hands on you and say you are an apostle. और कोई व्यक्ति आप पर हाथ रख के नहीं कह सकता आप एक प्रेरित है, Prophet. नबी। Nobody can appoint you and say you are a prophet. और कोई आपसे ये हाथ रख के नहीं कह सकता आप नबी हैं। Christ appoints prophets. लेकिन मसीह ये नियुक्त करता है। You may want to be one, but you can't be if God doesn't appoint you. आप चाहते होंगे नबी बनना, लेकिन परमेश्वर नहीं करेगा। Evangelist. सुसमाचार Nobody प्रचारक। can put his hands on you and say you are evangelist. और आप हाथ रख के ये नहीं कह सकते आप सुसमाचार You cannot प्रचारक try हो to गए। be one yourself. और आप अपने आप से नहीं बन सकते। For many years after I was converted, I tried to be evangelist. और मेरा बदलाव होने के बाद मैंने बहुत साल एक सुसमाचार प्रचार होने I का used to प्रयत्न किया। preach on all the streets of Cochin. और हर एक गलियों में कोचिन में मैं सुसमाचार 2 करता। years I covered every street. और 2 साल में सारी गलियों में मैंने प्रचार किया, Nobody was converted. लेकिन किसी का बदलाव नहीं हुआ। What do I learn? मैं उससे क्या सीखता हूँ? I am not an evangelist. मैं एक सुसमाचार प्रचारक नहीं हूँ। But when I began to teach the word, everybody would understand. और जब मैं वचन सिखाने लगा, हर कोई उसे समझने लगा। I learned I cannot make myself an evangelist. इससे मैंने सीखा कि मैं अपने आप को सुसमाचार प्रचारक नहीं बना सकता। God gifts me as a teacher. और परमेश्वर ने मुझे एक शिक्षा देने के लिए So, शिक्षक के रूप में like वरदान that, दिया। you cannot go to somebody and say, okay, I appoint you as a teacher. और किसी के ऊपर आप हाथ रख के ऐसे नहीं कि मैं आपको शिक्षा देने के लिए नियुक्त And you करता should हूँ। not feel guilty if you cannot teach the Bible like me. अगर आप मेरे समान वचन नहीं सिखा सकते हो, आपको दूषित एहसास नहीं करना है। If God give you the gift, you can teach better than me. अगर प्रभु आपको वरदान देगा, आप मुझसे भी अच्छे से सिखा सकते हैं। I am not condemned that I cannot evangelize some young brother who's a first class evangelist. और मैं इस प्रकार मैं अपने आप को दोषित नहीं करता कि कोई जवान इस प्रकार सुसमाचार दे पा रहा Okay, है। praise the Lord, God has given him. अगर वो कर पा रहा है, प्रभु की स्तुति, वो प्रभु का वरदान है। I told you about 4 of them. मैंने 4 के बारे में बताया। Apostle, प्रेरित, prophet, नबी, evangelist, teacher. सुसमाचार प्रचारक को शिक्षा We देने cannot वाला। appoint any of them. हम किसी की Christ नियुक्ति नहीं कर appoints सकते। them. मसीह केवल उन्हें I नियुक्त cannot करता है। make myself apostle, मैं prophet, अपने आप को evangelist. प्रेरित या नबी या सुसमाचार But प्रचारक when नहीं it कर comes to सकता। the pastor, और जब वो पास्टर के बारे में आता है, people think I can become a pastor. और वो उन्हें लगता है कि लोगों को लगता है मैं एक पास्टर बन I सकता can go हूँ। to Bible school, get a degree and become a pastor. मैं बाइबल स्कूल में जाके डिग्री पाकर मैं पास्टर बन It is सकता हूँ। as stupid as thinking I can make myself an apostle. और ये इतना ही मूर्ख बात है जैसे हम सोचे कि मैं एक अपने आप को प्रेरित बना Or सकता हूँ। somebody else can lay hands on you and say you're a pastor. और कोई आपके ऊपर हाथ रखे कि आप पास्टर हैं। Can he put his hands on you and make you an apostle? और क्या किसी पर हाथ रख के आप प्रेरित बना सकते हैं? No. नहीं। These are very clear. Christ has put these people as gifts in the church. और ये बहुत ही साफ तरीके से लिखा है कि मसीह ने ये वरदान कलीसिया में दिए हैं। So none of the early apostles tried to make people into apostles or pastors. और पहले की किसी भी प्रेरितों ने किसी को भी इस तरह प्रेरित या सुसमाचार प्रचारक बनाने की कोशिश Or नहीं a की। teacher or a pastor. या प्रेरित या वचन की शिक्षा देने वाले। The Lord has to gift them. परमेश्वर उनको वरदान देते What we हैं। can do is हम क्या कर सकते हैं? appoint leaders in the church, call them elders. हम कलीसिया के अंदर अगुवों को नियुक्त कर सकते हैं। Minimum 2, और 2, because it's a body. कम से कम 2, क्योंकि वो एक देह है। 2 by 2. और 2। Like the Holy Spirit said in Acts 13, separate Barnabas and Saul. जैसे प्रेरितों के काम 13 के अंदर पवित्र आत्मा पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग In करो। the Old Testament, it was not like that. और पुराने नियम में ऐसा नहीं था। One Elijah, और एक one ही Elisha, एलिया और एक ही एलीशा, one John the Baptist. एक ही यूहन्ना But New बपतिस्मा करने Testament, वाला। 2 by 2. नए नियम में 2 और 2 Minimum है। 2. और कम से कम 2 है। Maybe 3, maybe 4. और 3 और 4 हो सकते हैं। So some churches, big church, you need 3, 4. और बड़ी कलीसिया के अंदर 3 या 4 जरूरी But है। pastor, nobody can appoint. एक पास्टर है, उसकी नियुक्ति कोई नहीं कर सकता। So God gives these specific gifts to people. और परमेश्वरी है जो लोगों को ये खास वरदान But देते like हैं। so many things have been changed by Christianity, और बहुत सारी चीजें मसीहत में बदली है। many people know that praying to Mary is wrong. और वो जानते हैं कि मरियम से प्रार्थना करना गलत है। Infant baptism is wrong. बच्चों का बपतिस्मा देना गलत है। Why? क्यों? Because it's not in scripture. क्योंकि वचन में नहीं But they है। don't see that appointing pastors is also wrong, because that's also not in scripture. और ये नहीं देखते वचन में ये भी नहीं कि पास्टर की नियुक्ति नहीं कर सकते। If you can accept that, then you can also start praying to Mary. अगर आप ये ग्रहण कर सकते हैं तो फिर आप मरियम से प्रार्थना करना If भी। you can change one thing, you can change the others also. आप अगर एक चीज बदल सकते हैं तो दूसरी बात भी बदल दीजिए। There was a great man of God called Andrew Murray. और एंड्रू मोरे करके एक प्रभु के महान दास थे। Some wonderful books. बहुत अद्भुत पुस्तकें लिखी। He wrote a big article that infant baptism is the correct thing. और उसने लिखा कि जो बच्चों का बपतिस्मा है वो सही है। It is on the internet. I've read it. और ये इंटरनेट पर है। And you know what he said? उसने क्या कहा? He said it's not in the Bible.
वो बाइबल में नहीं है, but the church has accepted it for so many years, so it is correct. और कलीसिया ने बहुत सालों से इसको अपनाया है, इसलिए वो सही है। I was shocked. Andrew Murray, who's written such good books, writes this. और मैंने ये चीज को पढ़कर बहुत ही मुझे शौक लगा कि ये एंड्रू मुरे ने इस प्रकार जो पुस्तकें लिखते हैं कहता But it है, didn't change my view और उसने मेरे विचार को नहीं बदला। because of one reason. एक कारण से, I don't get my doctrine from Andrew Murray, I get it from the Bible. और मेरे सिद्धांत एंड्रू मुरे से नहीं लेकिन वचन से आते हैं। So make that your principle. Whatever great man of God says something, if it's not in the Bible, don't accept it. और आपका ये सिद्धांत बना ले कि कितना भी महान व्यक्ति कोई भी सिद्धांत अगर वो वचन में नहीं The तो उसे same thing सिद्धांत न applies to बनाए। the Holy Spirit. और यही पवित्र आत्मा के बारे में लागू होता है। When you are born again और जब आपका नया जन्म होता and you है say, Lord Jesus, come into my heart. और आप कहते हैं प्रभु यीशु मेरे मन में आ, Like many of you have said, like I said 58 years ago, और 58 साल जैसे आपने कहा होगा वैसे मैंने भी कहा, turned my life around completely. उसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। Many people say today, there are some preachers, और बहुत सारे प्रचार आज ऐसा कहते हैं, nowhere in the Bible it says, receive Jesus into your heart. कहीं पर भी वचन में नहीं लिखा कि हृदय में यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। I say, yes, it does. और मैं कहता हूँ हाँ ऐसा कहा है। John chapter 1, यूहन्ना 1 अध्याय verse 12. 12 वचन, As many as received him, to them he gave the authority to be the children of God. और जितने ने उसको ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार It दिया। happened to me. वो मेरे साथ हुआ, I received him and I became a child of God. और मैंने उसको अपनाया और मैं ये परमेश्वर का पुत्र बन गया। So how can you say it's wrong to receive him? और कैसे आप कह सकते हैं गलत है हृदय में See, उसका people who स्वीकार don't know करना। the Bible, they preach all types of things. और जो वचन को नहीं जानते ऐसे लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं। But they say the early Christians always told people to receive the Spirit. लेकिन पहले जो शताब्दी में लोग जो थे वो हमेशा पवित्र आत्मा के Okay. प्राणी के लिए प्राप्त Here करते is the थे। principle of Bible study, और यह बाइबल अध्ययन का एक सिद्धांत यहाँ है, which I wanted to mention in the last time session also. और जो अंतिम सेशन में भी आपसे मैं बता रहा था। Never take a doctrine from the Acts of the Apostles, और कोई भी सिद्धांत प्रेरितों के काम की पुस्तक से न ले, because it is not a doctrinal book, it's a historical book. और वो एक सिद्धांत का बुक नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, लेकिन say- वो एक इतिहास का पुस्तक है। Isn't it inspired by the Holy Spirit? और क्या ये पवित्र आत्मा से प्रेरित है? Yes. हाँ। But the Holy Spirit is only telling what people said or people did. और पवित्र आत्मा जो लोगों ने कहा और किया उसके बारे में बताता है। Do you know there's a verse in the Bible which says, there is no God? और वचन में ऐसा लिखा है कि आपको पता है कि जहाँ लिखा है कोई परमेश्वर नहीं है। Have you read that? क्या आपने पढ़ा है? Have you read a verse in the Bible? There is no God. कैसा वचन पढ़ा है कि कोई परमेश्वर नहीं है? Inspired by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से लिखा गया है। I'll show you. मैं आपको बताना चाहता Psalm 14 verse 1. हूँ, भजन संहिता 14:1, It's only half of the verse. और ये आधा ही वचन है। There is no God. कोई परमेश्वर है ही नहीं। But that's not the full verse. लेकिन ये पूरा वचन नहीं है। The full verse is, the fool has said in his heart, there is no लेकिन God. पूरा वचन है, मूर्ख अपने मन में कहता है कोई परमेश्वर नहीं है, The fool says it only in his heart. और मूर्ख अपने मन में ही कहता है। Bigger fools say it to their mouth also. और जो बड़े मूर्ख होते हैं वो अपने मुख से भी बोलते हैं। So if you take a statement, but you say that's inspired by the Holy Spirit. लेकिन आप कहेंगे कि तो पवित्र आत्मा से प्रेरित वचन है, Yeah, the Holy Spirit is saying what somebody else said or did. और पवित्र आत्मा वो कह रहा है जिसने किसी और ने कहा और किया। So Acts of the Apostles is inspired by the Holy Spirit. और प्रेरितों के काम पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित पुस्तक है, But he's not asking you to imitate it. लेकिन वो ये नहीं कहता कि आप उसका अनुसरण In करें। Acts 15, you read that Paul and Barnabas had a fight with each other. और प्रेरित 15 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस और बरनबास के बीच में झगड़ा हुआ। Who wrote that? और किसने ये लिखा? Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने। Does it mean you also should fight with other और believers? क्या इसका मतलब है आप और विश्वासी के साथ झगड़ा करें? नहीं। So don't get a doctrine from Acts of the Apostles. और प्रेरितों के काम की पुस्तक से सिद्धांत न ले। For example, उदाहरण के रूप में, nobody gets this doctrine from Acts of the Apostles. और प्रेरितों के काम से ये कोई सिद्धांत नहीं लेता You know, है। we go to pick out things which we like and drop out things we don't like. और हम ऐसे होते जो हमें चीजें पसंद है उसको हम लेते हैं और बाकी की चीजें छोड़ देते In the हैं। early days, पहले के दिन में Acts 2:44, प्रेरित 2:44, all believers had everything in common, और सारे जो विश्वासी हैं उनकी सारी वस्तुएं साझे की होती and they थी, sold their possessions and shared them with all. और सारी संपत्ति बेचकर वो आवश्यकता होती थी बांट देते थे। Have you done that? क्या आपने ऐसा किया है? Have you sold all your possessions and shared it with other believers? और आपने अपनी संपत्ति सारी बेचकर विश्वासी को क्या दी है? Have you sold your house and gone to live in a rented house? और क्या अपना घर अपना बेचकर कहीं भाड़े के मकान में गए हैं? They sold their property.
अपनी संपत्ति बेच दी उन्होंने यहाँ, and possessions और सब कुछ अपना and shared सामान them बेच with दिया, everybody, all the other believers. और विश्वासी के साथ बांट दिया, If anybody had a need, और जिनकी आवश्यकताएं and थी, they had everything in common. और सब कुछ साझे का था। That means it's not yours or mine. Everything is anybody's. और इसका मतलब आपका भी नहीं, मेरा नहीं, हम सबों का है। Which church practices that? और कौन सी कलीसिया इस प्रकार ये सिखा, ये But it's आपका, in Acts chapter 2. लेकिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है। What does that teach us? ये क्या सिखाता है? This is history. ये इतिहास है, This is not a doctrine. ये सिद्धांत नहीं है। If this is a doctrine, then we must all practice it. अगर ये सिद्धांत होता तो हम सबको इसका पालन करना पड़ता।